जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए तुखारी महला पहला ए मन मेरेया बिन पौड़ियां मंदर क्यों चढ़े राम ए मन मेरेया बिन बेड़ी पार न अंबड़े राम पार साजन अपार प्रीतम गुर शब्द सुरत लंगावे मिल साध संगत करें रलियां फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे चार बंद हैं। ये चौथा बंद है। इस दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान
ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ 2018। ਸੋ ਕੱਲ 22 ਤਰੀਕ 9 ਵੈਸਾਖ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗਾ। ਕੱਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਰ 25 ਤਰੀਕ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿਹਾਰ ਨਹਿਰੂ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 28 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਾਂ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਪੁਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ 27, 28, 29 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੂਰਾਂ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਹੀ ਵਾਰਸ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਨੇ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
बंगला साहब की की जाण वाली बेनती हर घर विच पहुँचती है। इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करने वास्ते ये दो शब्द दास ने बोले हैं। अगले समय वास्ते आप जी करो मेहरबानी, सानू कथा सरवण करवाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबं गुर प्रसाद। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह भरम पे भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया। तिस मोहन लाल प्यारे, हाँ फिरों खोजन दिया। तिस दस प्यारे, सिर धरी उतारे। एक भोरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रेरंग रंगारे। एक तिल भी ना धीरीजै, प्रभ स्यों मन लीना। ज्यों जल मीना, चात्रिक जिवै तिसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुझंतिया। मम्मा मनुष्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मनुष्यों कह कबीरा, मन सा मिलया न कोय। ए मन शक्ति, ए मन सियो। ए मन पंच तत्व का जियो। ए मन ले जो उन मन रहे, तो तीन लोक की बातें कह। वाहिगुरु जियो, गुरु गरीब निवाज। बेशुमार अथाय गणत अतोल है। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ए मन मेरेया, बिन पौड़ियाँ मंदिर क्यों चढ़े राम। ए मन मेरेया, बिन बेड़ी पार न अंबड़े राम। पार साजन अपार प्रीतम, गुर शब्द सुरत लगावे। मिल साध संगत करें रलियां, फिर न पछोतावे। कर दया दान दयाल साचा,
हर नाम संगत पाहो, नानक पहम पै सुनो प्रीतम, गुर शब्द मन समझामो, कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत पामो, नानक पैम पै सुनो प्रीतम, गुर शब्द मन समझाओ। जागती जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भर, चवर छतर तख्त दे मालक, जुगो जुगो अटल सतगुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर तथा समुचे देश अते विदेशों में गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की लड़ीवार विचार सुन रही समूह साध संगत, आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह की कृपा का सदका बड़े लंबेरे समय तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की लड़ीवार विचार चढ़ती कला टाइम टीवी द्वारा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उद्यम उपराले सदका घर घर बैठ के संगतां श्रवण करदियां और दास से खूब समझदा कि जेड़े माई भाई एकाग्र चित होके सतगुरु की बाणी नाल जुड़ते हैं, उन्होंने जीवन के राह उत्ते जिन्नियां को उलझना मुश्किलां आउंदियां हन, वो गुरु शब्द की विचार तो श्रवण करके प्रेरणा लैके उन्होंने हल करन विच सफल होंदे हैं। ये वखरी गल है, कोई सुनदा ना होवे या कोई सुनन दा इच्छुक ना होवे, पर जेड़े माई भाई सुनते ने एक नहीं हज़ारां करोड़ों की गिनती विच मिलते भी ने, फोन राही भी अपनी इस प्रसन्नता नूं ज़ाहिर करते हैं कि सानू गुरु शब्द की विचार सुन के अनेकां ही उन्हां समस्यावां दा हल मिलता है। तो अज भी जिस पावन शब्द की विचार जो जगत गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह के मुखारबिंद तो उचारण किया होया, तो खारी महला पहला जिसते 4 पद हैं, जिसते पहले 3 पदों की विचार आप श्रवण कर चुके हो। अज चौथे पद की विचार करने की सेवा दासरे नूं प्राप्त हुई है। शब्द का मजमून एको ही है, क्योंकि पातशाह ने साड़ी इस समस्या नूं चंगी तरह समझ लिया भी ये सारी खेड मन दी है। धन गुरु अमरदास तीजे पातशाह फरमाते ने, इस तन में मन को गुरमुख देखे। तन ते मन 2 चीज़ां हैं। जानते असी हाँ कि तन दे अंदर मन है, जिन्ना ध्यान असी तन वाल देने हाँ, जिन्नी संभाल असी तन की करते हाँ, उन्नी मन की नहीं करता, जिसके कारण साडा मन भटकदा रहता, क्योंकि असी उहदे नाल ध्यान ही नहीं देते। पर गुरु अमरदास तीजे पातशाह जी ने साडा ध्यान दिवाउंदे कहा, इस तन में मन को गुरमुख देखे, मोर्चा न लागे जाहो मैं सुख है। उन्होंने पावन बचन ने, प्यारिओ मन मैले सब किछ मैला, तन तोते मन हच्छा न होए।
ਅਸੀਂ ਤਨ ਵੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੀਦਾ, ਜੇ ਘੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਬਈ ਤਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਮਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਲਪਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਹਠ ਯੋਗ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਹਿਜ ਯੋਗ। ਹਠ ਯੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਠ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮਿਲ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬਲ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਰੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ,
देखो तुसी कथा सुन रहे हो, मैं कथा सुना रहा, ਤੁਹਾਡਾ या मेरा मन इथों निकल जाए तो फिर कथा कौन करेगा, कथा कौन सुनेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मन दे नाल ही सारी खेड है। ते गुरुदेव ने कहा जो मंदिर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस थमन, जो पाखंड नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। मन नू प्रेरणा करनी, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया न कोए। इनू मनसा कट्ठा नहीं पढ़ना, मन सा, मन वर्गा कोई मित्र नहीं, मन वर्गा कोई साथी नहीं। फिर आख्या ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्व का जियो, ए मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कह। लोग पूछते ने मन है कि? भगत जी ने कहा जेड़े पासे लाओगे मन हो कुछ ही बन जाता, माया विच लाओगे माया धारी बन जाएगा, शरीर वाल लाओगे शरीर धारी बन जाएगा। पर जिस मन नू गुरु की संगत भी जोड़ लोगे, गुरु के शब्द राही जोड़ लोगे, फिर ये मन उन मन की बात। पर इसका तरीका भी दसे, मन समझा मन कारने, कछुअक पढ़िए ज्ञान। मन नू समझाना भी पैंदा, मन नू प्रेरणा भी पैंदा। महापुरुष क्या करते सन कि 4 प्रकार की कृपा है, 4 प्रकार। एक है प्रभु कृपा, एक है गुरु कृपा, एक है शास्त्र कृपा, ते एक है अपने उत्ते अपनी कृपा। प्रभु कृपा है कि सानू मनुखा जन्म मिल गया, गुरु कृपा है कि गुरु साहब ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र कृपा का मतलब है चंगियां पुस्तकां, चंगे मैगजीन, चंगा लिटरेचर पढ़ना। अज असी उस पासे ध्यान ही नहीं दे रहे। एक दीवान मनोरमा का मैं एक लेख पढ़िया, उहदा सरलेख सी कि अज पुस्तकां साडी जान नूं रोंदियां हन। जदों मैं ध्यानपूर्वक पढ़िया तो उन्हें पता की कहा, चंगियां चंगियां पुस्तकां लाइब्रेरियां विच पईयां हन, जंदरे लगे हुए ने, उन्हां ते मिट्टी घटा चढ़ गया, कोई पढ़दा ही नहीं। ते फिर सानू शास्त्र कृपा किवें होवेगी? प्रभु कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ते फिर अपने उत्ते अपनी कृपा। कई बंदे इन्हां तिन्नां ही कृपा नूं जीरो कर लेंदे हन जे अपने उत्ते अपनी कृपा ना कीती जाए। मैं कहना तुसी भोजन का थाल परोस के अगे रख दो, देखी जाओ, ਉਹਦੀ गराई तोड़ के मुंह विच ना पाओ किमें पे। इसे तरह गुरु का ज्ञान ते बेअंत भंडार भरे पे, गुर सागर रतनी भरपूरे। पर विचार करन दे नाल सानू समझ आवेगी। तो अज दे चौथे पद विच गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने समझाया, आख्या भाई अपने अपने मन नूं तैयार करो, प्रेरणा करो। ए मन मेरेया बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़े राम। देखो कितनी सौखी दलील है, कितनी सौखी अपील है, कितना समझाउण दा ढंग दिल नूं टुंबण वाला। असी चाहुंदे हां कि मकान की छत ते पहुंच जाइए, फिर छत ते पहुंचण वास्ते पौड़ियां की लोड़ है। सीढ़ियां कह लो, पौड़ियां कह लो, जीना कह लो, जो मर्जी कह लो, गल तो समझण दी है कि मकान की छत उत्ते पहुंचना।
की शरण में आने तो पहला देवी के पुजारी सन। ना असी देवी का गुण खेद कर रहे हैं, ना देवी के पुजारी की गल। तो दसन वास्ते इतिहासक है कि वो कई साल पिता पुरखी तरीके नाल जाते रहे, पर जदों गुरु की शरण में आ गए फिर तो नहीं गए। फिर तो उन्होंने गुरु की सेवा की, गुरु के वचन मन्ने, तो फिर किथे तो किथे पहुंच गए। पर जो काल कमाई उन्होंने की, उन्होंने जीवन में पढ़ के पता लगेगा। उन्होंने आख्या जे गुरु की गल मननी है तो फिर अपनी मन की गल छड्डनी पवे। मैनू तो सारी उम्र में गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का पाठ विचार करदे इहो ही समझ आई, भाई एक गुरमुख है, एक मनमुख है। जिदा मूँह गुरु वाला है वह गुरमुख है, जिदा मूँह मन वाला है वह मनमुख। गुरमुख जाग पैंदा है, मनमुख सुता रहिंदा है। गुरमुख जन्म सवार लैंदा है, मनमुख जन्म बगाड़। तो गुरुदेव सानू समझाउंदे ने, ए मन मेरेया बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़े राम। ऐसी सौखी मिसाल है कि अनजान तो अनजान बंदा भी समझ के सहमत होवेगा कि बिल्कुल ठीक है। ए मन मेरेया बिन बेड़ी पार न अंबड़े राम। जाना है दरिया तो पार, तरना होंदा नहीं। पानी पता नहीं कितना डूंगा है, कितनियां लहरां ने, कितनियां मुश्किलां ने। हुण जाना भी पार जरूर है, फिर बेड़ी का आसरा ते तकना ही पवेगा। बेड़ी पूरा दे पूर पार लंघा देंदी है। आ जिहड़ी गुरु की संगत है ये बेड़ी है। इस बेड़ी विच सवार होके कोई पढ़िया है, कोई अनपढ़िया है, बेड़ी ते पार लंघा देंदी। बेड़ी ये वितकरा नहीं करती। मैं पढ़ रहा सी कि गुरु की संगत में आना कितना जरूरी है। कविराज भाई संतोख सिंह जी ने लिखा है कि जे बेड़ी में सवार होके कोई बंदा सौ भी जाए, मान लो कई बंदे गुरु की संगत आके मैं देखा माड़ी जी सुरती जुड़ी फट सौ जा, कोई गल नहीं, सौ ही गए ने, कोई बात नहीं, संगत तो बैठे ने। बेड़ी ने ये नहीं कहना भी तू हुण उतर जा, तेनों नहीं मैं पार लंघाउंदी, तू तो सौ गया। या कोई घट पढ़िया होवे या कोई वध पढ़िया होवे, बेड़ी ने तो पार लंघाउणा ही। भाई गुरु की संगत विच आउण नाल कुछ ना कुछ लाभ होवेगा, पर पहला मन नूं तैयार करना पवेगा। ये मन मेरेया बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़े राम। ये मन मेरेया बिन बेड़ी पार न अंबड़े राम। अंबड़े का मतलब अपड़ना, पहुंचना। बिना बेड़ी तो असी दरिया पार नहीं कर सकते। जाना भी जरूर है, पार लंघना भी जरूर है, क्योंकि पार साजन अपार प्रीतम। परले पासे भाव संसार समुद्र तो परले पासे वो सज्जन, वो वाहिगुरु अकाल पुरख जिसनों मिलने वास्ते मनुखा देही मिली है। कई बारी गुरु साहब सानू सुत्या नूं जगाउण लई चोप भी लांदे ने, पर कई बंदे मैं देखा बड़ा तकलीफ मन जाते हैं। ये गल क्यों कही महाराज ने? मैनू कई बारी कई लोगों का वास्ता पैंदा। मैं फरीदाबाद सा गुरनाम सिंह के घर ठहरिया सी, मैं कथा कर रहा सी गुरद्वारा। मैं उत्थे गुरु रामदास जी का एक बचन हवाला दे दिता कि गुरु रामदास जी कहते ने, जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जय हर बांझा। जिन्हां दे हृदय में परमात्मा का नाम नहीं वसिया, हे वागुरु उन्होंने मां नूं बांझ करती। एक सज्जन का फोन आ गया, बड़ा लाल पीला गुस्से में, क्यों जी मां का की कसूर है? नाम उन्हें नहीं जपिया, मां नूं क्यों बांझ कर? और मैं कहा भाई गुरमुखा, गुरु के आशे नूं समझ, मां की बहुत बड़ी ड्यूटी है। मां अपने बच्चे नूं बहुत कुछ सिखा सकती है,
तू उधर ते ध्यान नहीं दिता, तू उल्टे पासे सोचन लग पिया। मेरे कोल आ, खैर उहदे अंदर जग्यासा सी, आया, मैं उन्होंने घंटा डेढ़ लाया, फिर वो कायल हो गया। भाई गुरु के बचना ते एवें शंके ना करया करो, बल्कि समझण दा यतन करो, क्योंकि असी हाँ अल्पग, साडी बुद्धि है थोड़ी। हाँ गुरु को अरदास कर सकते हैं, सच्चे पातशाह सानू समझण दी बुद्धि दिओ। देखो कितनी दलील नाल समझाया जा रहा है। पार साजन अपार प्रीतम, पार दे मतलब परले पासे, इस संसार समुद्र तो परले पासे ओ सज्जन जिन्हों साजन किया। साजन जिहड़ा साडा भला चाहण वाला है, जिहड़ा साडे जीवन नूं सफल करन वाला है। अपार प्रीतम जिहदा पारावार नहीं पाया जा सकता, जिहड़ा प्रीत दा मुजस्समा है। आख्या उहदे नाल जे जुड़ना है, जे उहदी प्रसन्नता लैनी, जे उहदी गलवकड़ी विच आउणा है, जे उहनूं हिरदे विच वसाउणा है, तां फिर गुर शब्द सुरत लंघावे। गुर शब्द, शब्द दे ददे नूं सियारी, गुर शब्द, गुर शब्द सुरत, गुरु दे शब्द द्वारा सुरत जोड़ के। मैं हुणे हुणे इंफाल विखे सिद्ध गोष्ठी विचार करके आए। बड़ा खजाना पिया साडे कोल, असीं खोलदे ही नहीं, बस मत्था टेकिया, भेटा कीती, परिक्रमा कीती ते चले गए। नहीं नहीं, गुरु शब्द नूं खोलो, गुरु शब्द नाल जुड़ो, फिर पता लगता। सिद्धा ने आख्या सी गुरु नानक साहब, कमण मूल कमण मत वेला, तेरा कमण गुरु जिसका तू चेला। ते गुरु नानक पातशाह ने पता की किया, सिद्धो पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ना शरीर गुरु है, ना शरीर चेला। ये जिहड़ी साडी सुरत है ये चेला है। पर जदों ये शब्द नाल जुड़ जाएगी, फिर शब्द गुरु नाल मिलाप हो जाए। लो देखो, पहलियां दो सौखियां जियां प्रेरनावां दे के फिर वह रिजल्ट कर दे। आख्या पार साजन अपार प्रीतम, गुर शब्द सुरत लंघावे। पर शब्द का भी प्रभाव किमें पैंदा, आख्या वो भी दस दे। ठीक है, अज लोग कहते हैं वो जी साडा घर ही गुरुद्वारा है। ठीक है, जे कोई घर विच गुरबाणी पढ़दा कोई माड़ी गल नहीं, पर नहीं संगत विच आउण दा बड़ा लाभ है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं किसी ने पुछया सी, महाराज संगत विच आउण दा की लाभ है? कहते कल आई दसांगे। आया, कहते सत्संगत कीती है, बैठा है, हुण तू फलानी जगह जा, समझाउण दा तरीका। उत्थे गया, देखा दो कौए बैठे सन, वापस आ गया। महाराज उत्थे तो दो कौए बैठे सन। कहते कल फिर आई, संगत विच जुड़ी, कल फिर जाई। लगातार 1 2 3 4 दिन गया। जो चौथे दिन गया तो उत्थे ही 2 मनुख बैठे सन। आंदा भाई मैनू कोई समझ नहीं आ रही, मैं महात्मा नू बाबा नानक जी नू पुछया सी, उन्होंने मैनू इस रस्ते तोड़ दिता। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, जो चौथा दिन है। पहले दिन आया 2 कौए सन, दूजे दिन आया 2 बगले सन, तीजे दिन आया 2 हंस। अज तुसी 2 मनुख बैठे हो, मैनू दसो। कह लगे हाली तेन जवाब नहीं मिलिया, असी वो कौए ही हाँ। जदों मनुख संगत विच नहीं आउंदा, सुरती नहीं जोड़दा, उदों दी बिरती है कौए वर्गी। इधर वेख उधर वेख, कौन आया किस, एक कौए की बिरती। पर जदों ये जुड़ता है कुछ समय लई, बगला भी इवें ही करता है, कदे अखां खोल लैंदा है, कदे बंद कर लैंदा है, कदे खोल लैंदा है, कदे बंद कर। पर जिन्नी देर वो जुड़ता है कुछ ना कुछ सुनता है। तो जदों सुने हुए हीरे मोती अपने अंदर पैदा, रोज पढ़ते हो तुसी, मत विच रतन जवाहर माणिक, मत विच रतन जवाहर माणिक।
जे एक गुरु की सिख सुनी, तो जिहड़ा फिर गुरु की सिक्ख्या नूं सुन के मन लैंदा वो वधिया मनुख बन जाता है, वो वधिया इंसान बन जाता है। आखणगे तैनूं जवाब नहीं मिलिया, असीं ओहो ही हाँ। कहण दा तरीका है भाई गुरु की संगत विच आउण दे नाल शब्द सुरत लगावे, गुरु का शब्द सानू सेध दिंदा है, अगवाई बख्शदा है, जाच दसदा है। ते मिल साध संगत करें रलियां फिर ना पछोतावे। मिल साध संगत, कई बारों फिर तुर के भी चले जाते हैं, कई लंगर वाली ध्यान रखते हैं भी कदों खुलेगा लंगर छकांगे, ठीक है, उन्होंने पहुँच उत्थे तक है। कई जोड़े चुकण भी आते हैं, उन्होंने सोच उत्थे तक है। पर मिल साध संगत जिहड़े मन करके बचन करके कर्म करके गुरु की संगत में जुड़ते ने, करें रलियां, वो फिर मौजा माणते, वो फिर अपने जीवन की सफलता के राह ते तुर पैंदे ने, उस वाहिगुरू अकाल पुरख नाल जुड़ जाते ने। ते फिर ना पछोतावे, फिर वो कदे पछताउंदे नहीं। उन्होंने मनुखा जन्म सफल करने की जुगत मिल जाती है। फिर पातशाह कहते ने आओ फिर की करिए, अरदास करिए। मैनू तो समझ आई है भाई जदों मन ना जुड़े अरदास करो, अरदास करोगे तुहाडी अपनी चतुराई ढीली हो जाएगी, तुहाडी अपनी सियाणप पिछे रह जाएगी। जिदे अगे अरदास करोगे वो फिर अपना बिरद पाले। रोज तो पढ़ते हैं बाणी, भाई अरदास करने दे कितने ही तरीके दसे, कितने ही शब्द वरते ने सच्चे पातशाह। असी ते हाँ बच्चे, असी ते हाँ भुलणहार। जिमें बच्चे अनेक गलतियां करते हैं, असी तो गलतियां करते, साडे ते कृपा करो। आख्या जिस तरह जैसा बारिक भाए सुभाई, जैसा बारिक भाए सुभाई। मैं हमेशा कहना भी किते मेरे कहने ते तुसी कहा, यह तो होगी मजबूरी। भाई ज्ञानी जी ने कहा हूँ बोलो तो बोलना ही पवेगा। नहीं नहीं, जदों तुसी अपने अंदरों बोलोगे फिर मन की अवस्था बदल जाएगी। बोल के देख लो, अपने अंदरों कहो जैसा बालिक भाई सुभाई, जैसा बालिक भाई सुभाई। बच्चे का सुभाव है गलतियां करना, लख अपराध कमावे, कर उपदेश चिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लाभ। पिछले अवगुण बख्श लो प्रभ, आगे मार्ग पावे। गिनतियां मिनतियां ना करो। अज असी सवाल जवाब बड़े करते, किवें कर आप ही सवाल करनगे ज्ञानी जी यह गल पुछनी। एक तो सानू एक वादी पै गई, सानू जी एक शंका है। अरे गुरु की गल ते शंका, पहला तो तुसी मुढ़ों ही गलत हो गए। शंका ना करो। बौड़ पिता घर लावे, पिछले योगन बख्श लो प्रभु, आगे मार्ग पावे। फिर गिनतियां मिनतियां ना करो। माड़ा जा किसी कहो है ये तो जी मैं कदे नहीं किया, मैं गलती तो कदे की नहीं। नहीं नहीं, गलतियां होंदियां ने, लेखे कतै न छूटी है। खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार। संगत विच आया बहुत कुछ मिलता है। तो पातशाह ने मिल साध संगत करें रलियां
फिर ना पछतावे, फिर तेरी मौज बन जाएगी, फिर तेनू जीवन का रस्ता मिल जाएगा, फिर तेनू कदे पछताउणा नहीं पवेगा। ते मिलेगा किवें? लो अखीरलियां दो पंक्तियां ध्यान नाल पढ़। कर दया दान दयाल साचा, गुरु कोलों परमेश्वर कोलों दान मंगना है। दान वो हुंदा जिहदे बदले च कुछ नहीं देना पैंदा। दान जिहड़ा है उहदे बदले च की देना? दान तो दे दिता, पर दया तो बिना दान नहीं किया जा सकता। इसलिए अरदास करनी है, वाहिगुरु कर दया साडे ते रहम कर, दान दयाल साचा, हे सच्चे वाहिगुरु दया कर सानू दान दे। गुरु अर्जुन देव पातशाह ने ते दान ही मंगे, परमात्मा को दान ही मंगे। आख्या मांगो दान ठाकुर नाम, मांगो दान ठाकुर नाम। देखो मैं गुरबाणी दियां पंक्तियां राही आप भी प्रेरणा लेना, तुहानू भी प्रेरणा देना। भाई दान मंगना है। जे कोई आखे जी होर कुछ क्यों ना मंगीए, महाराज कहते मैं तो नहीं मंगता, मैं नहीं मंगता, तुहाडी मर्जी है। मैं तो मंगदा मांगो दान ठाकुर नाम, मांगो दान ठाकुर नाम, मांगो दान ठाकुर नाम, मांगो दान ठाकुर नाम। मैं क्यों नहीं मंगदा होर कुछ? मैनू समझ आ गई है, अवर कछु मेरे संग न चाले, अवर कछु मेरे संग न चाले, अवर कछु मेरे संग न चाले, अवर कछु मेरे संग न चाले। और कख भी मेरे नाल नहीं जाना। मिले कृपा गुण गाओ, बस मेरे ते कृपा करो, मैं तुहाडे गुण गाउंदा। गुरु ने तो बड़ा सौखा तरीका दसिया सी। अज गुण गान दे भी तरीके, अज सिमरन दे भी बड़े टकनीक दसिया जा रही ना। गुरु साहब ने तो सौखा तरीका दसिया, जे प्रसाद बसै सुखमंदर तिसे ध्याए, जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, 8 पैर सिमरो तिसर। ना उठदियां दी पाबंदी, ना बहंदियां दी, ना आख्या नहीं उठत बैठत सोवत ध्याई है, उठत बैठत सोवत ध्याई है, उठत बैठत सोवत ध्याई है, उठत बैठत सोवत ध्याई है। मार्ग चलत हरे हर गाई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है। तो तरीका दस दिता पातशाह ने। पहला मन नूं परेरो, पहला मन नूं समझाओ। जदों समझ आए तो समझेगा गुरु के शब्द राई, समझेगा साध संगत में आके। ये साध संगत टकसाल है, ये साध संगत चाटसाल है, ये साध संगत धर्मसाल है। जिमें पाठशाला में जाके बच्चे विद्या पढ़ते ने, उन्होंने पढ़ना आ जाता है। इसी तरह गुरु की संगत में आके सानू जांच आ जाएगी। ते गुरुदेव ने जांच का तरीका कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत पावो। हे प्रभु कियां छुट जान, मेरी ये शंके करन दी बिरती मुक जाए, बस मैं संगत विच आके तेरे सच्चे नाम नू प्राप्त कर लवां। नानक पैम पै सुनो प्रीतम, नानक पैम पै सुनो प्रीतम, सुनो प्रीतम नानक। हुण प्रीतम अखर भी इस शब्द विच कई बार आया। इत्थे प्रीतम दे मम्मे नूं औंकड़ भी आया है, पर इत्थे प्रीतम दा मम्मा मुक्ता है। ये संबोधन है। हे वाहिगुरु नानक पैम पै, ये नानक तुहाडे चरनां विच बेनती करदा है, सुनो प्रीतम।
हे प्रीत दे मजस्मे वाहिगुरु मेरी अरदास सुनो। गुर शब्द मन समझावो, गुर शब्द मन समझावो। देखो इत्थे लिखा समझावो, समझायो नहीं, समझावो। मैं अपने मन नू गुरु शब्द की विचार नाल समझावां, मेरे ते किरपा कर। भाई जे अपना जीवन सफल करना, कोई पुठे लटकण की लोड़ नहीं, कोई धूणियां तापण की लोड़ नहीं, कोई पखंड करने की लोड़ नहीं। बस सरल जे होके गुरु की गल मन लो। गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो भलके उठ नाम दे। शुरू कर दो, कर इशनान, सिमर प्रभ अपना, शुरू कर दो। मन तन भय अरोगा, कोट बिगन लाथे, प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुर पूरे तू राखे। समा हो चुका है, क्योंकि शब्द की विचार विच 3 पदे पहला विचारे जा चुके हैं। दास नूं उहदा रिजल्ट, उहदा निचोड़ कढ़ण की सेवा मिली। तो जिन्नी क मैनू गुरु ने तुच्छ बुद्ध दी है, मैनू तो वही समझ आया बई चतुराइयां चलाकियां छड्डो। ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। हे मेरे मन तू सुन, जे सुन ली तैयार हो जाए फिर इनू समझाओ। ए मन मित्र प्यारिया तथा ए मन प्यारिया, तू सदा सच संभाले। ए कुटुंब तू जे देखदा, चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही, तिस नाल क्यों चितलाई है। ऐसा कम मूले ना कीचै, जिद अंत पछो ताई। सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। लो ये है गुरु की बाणी दी वो सिक्ख्या जिहड़ी पारस कला ते रखती है। पर जे कोई सिक्ख्या नूं सुन के मनेगा, फिर पातशाह कहंदे ने गावीए सुणीए मन रखीए भाओ। दुख पर हर सुख कर ले जा। जिहड़ा फिर सुनेगा मनेगा, उहदा की होवेगा? लोक सुखी है पर लोक सोहेले, लोक सुखी है पर लोक सोहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। भुलां चुकां दी खिमा बख्शे। गुरु के प्यार विच, गुरु के सत्कार विच रहिंदियां होइयां, गुरु की बाणी दी विचार करदियां फिर भी कई भुलां हो जांदियां ने। वो भुलां दसदियां हन गुरु मेरा भुल है, परमेश्वर भुल है। आओ असी सारे गुरु शब्द तो प्रेरणा लईए ते अपने जीवन नूं सवारीए। ते प्रेरणा लैण दा तरीका है निता प्रति संगत विच आओ। निता प्रति गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दा सहज पाठ करो ते सुनो। देखो गुरु ने कैसी कला वरताई। मैं तो गुरु की कला ही समझदा। जदों दास की बाईपास सर्जरी हुई, मैं बिल्कुल निराश हो गया। मैं कहा भी हुण ते पता नहीं, पर नहीं, गुरु ने आख्या नहीं नहीं तू निराश ना हो। चढ़दी कला टाइम टीवी के डायरैक्टर समेत टीम चले गए खबर लेने वास्ते। और उस गुरु की प्रेरणा का सदका अज चौथी बारी सहज पाठ हो रहा है, सुनिया करो। फिर हुण विचार भी शुरू कर दी है 11 अक्तूबर तो एक शब्द की विचार लड़ीवार, तां जो सानू एक एक अखर की समझ आवे। बस समझ आवेगी, मिल साध संगत करन रलियां, फिर साडे सारे भरम भुलेखे दूर हो जाणगे। गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।